आदरणीय राहुल जी ने कहा कि आज हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी जीत का झंडा गाड़ा है। सब देशवासियों को राहुल गांधी जी की तरफ से, कांग्रेस अध्यक्षा जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। देश का किसान जो पीड़ा में है उसे लेकर आज राहुल गांधी जी आपसे बात करेंगे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से एक किसान की पीड़ा को लेकर एक पुस्तिका जो सर्कुलेट की जाएगी, मैं सबसे पहले आदरणीय राहुल गांधी जी से और संगठन महासचिव प्रभारी और हमारे कोषाध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि पहले वो बुक रिलीज कर दें और उसके बाद राहुल जी आपसे बात करेंगे। आदरणीय राहुल जी, 2 मिनट रुक जाइए। Sir, if you can just stand up for a minute. देखिए सी कितने फेयर हैं हम लोग, इधर भी दिखाते हैं, उधर भी दिखाते हैं, उधर भी दिखाते हैं। हाँ, बीजेपी होती तो बस ऐसे करती। आदरणीय साथियों, बगैर किसी विलंब के मैं अनुरोध करूंगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी आपसे बात करेंगे। Good morning. There is a tragedy unfolding on this country's ability to give you a job, this country's ability to stand tall among other nations. So, what we are seeing, and we've seen it in industry after industry after industry. We've seen it when it comes to the airports. We've seen it when it comes to infrastructure. We've seen it when it comes to power. We've seen it when it comes to telecom. We've seen it when it comes to retail. Across the board, what we are watching is the development of massive monopolies in this country. What do I mean? I mean that 3, 4, 5 people are now owning this country. This country is now owned by a limited, small group of people who I term as crony capitalists, who have a close relationship with the Prime Minister and who provide the Prime Minister with media support. And I don't mean you, because you are not the decision makers. I mean the forces that control you. Which was the space that was protected from monopolies until now? First of all, the biggest business in this country, and this is something that youngsters have to understand, the biggest business in this country is agriculture. 60% of our people are in agriculture, and in terms of the value, agriculture is by far the biggest hit. Agriculture is not just what the farm grows. Agriculture is the machinery that moves that produce. Agriculture is the structure of how that produce is sold. And now what we are seeing is the last bastion that was protected from monopoly is now being overrun. How is it being overrun? 3 new laws have been passed. They are designed to destroy Indian agriculture. How are they designed to do it? By destroying the Mandi, by destroying the Essential Commodities Act, and by making sure that no Indian farmer can go to court to protect himself. And to me it is a tragedy that this entire country is just watching this ridiculous show.
It is a tragedy because it shows me that the country itself is not able to understand the depth of what is happening. So what is going to be the result of this? The result of this is going to be 3 or 4 people are going to own India. 3 or 4 people are going to own the entire agricultural system. Farmers will not get the value they deserve. The mandi system will be destroyed. 3 or 4 businessmen will be able to store millions and millions and millions and millions of tons of wheat, rice, other essential commodities. And then, my friends in the middle class, you will be paying prices that you have never imagined. Please understand that the rice you buy, the wheat you buy, comes to you at the rate it comes because of the APMC, because of the agricultural system, because of the structure. So this is not an assault on the farmers. This is an assault on the middle class, and this is an assault on every single youngster in this country who is not going to be able to get a job. So this is what I want to tell the youngsters. Realize that your independence is being taken away. Realize that this happened before, and we fought this. And everything we have today is because of the fight that we fought. And the same exact thing is happening to India today. This is the simplest way I can put it. So, why are the farmers of Punjab and the farmers of Haryana standing there? Who are they? They are the patriots of this country who are protecting the livelihood of 60% of this country. I 100% support them. And I go further. Every single Indian person should support them because they are fighting for us. They are not fighting for themselves. They are fighting to prevent this country from falling into the hands of 2 or 3 people. That is the heart of what I wanted to say. मैं हिंदी में बोल देता हूं. देखिए, अगर आप पिछले 6-7 साल को देखें तो हर इंडस्ट्री में उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है. पावर देखिए, एयरपोर्ट्स देखिए, पोर्ट्स देखिए, टेलीकॉम देखिए, जहां भी आप देखेंगे उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है. मतलब इस देश के 4-5 नए मालिक हैं. आज तक एग्रीकल्चर में, खेती में मोनोपोली नहीं थी. आज तक हिंदुस्तान के खेतों का फायदा किसानों को जाता था, मजदूरों को जाता था, मिडिल क्लास को जाता था, गरीबों को जाता था. कैसे? एक पूरा ढांचा था जो इन लोगों की रक्षा करता था. उसमें मंडियां शामिल थी, उसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट शामिल था, उसमें लीगल सिस्टम शामिल था. ये 3 कानून खेती में, एग्रीकल्चर में एक बार फिर जो इंडिपेंडेंस से पहले हालत थी वो करने जा रहे हैं. 4-5 लोगों के हाथ में पूरा का पूरा हिंदुस्तान की खेती का ढांचा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं. इसीलिए किसान बाहर खड़े हैं और किसान अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं. और ये हमारे मिडिल क्लास भाइयों को और खासतौर से युवाओं को समझना होगा, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपके भोजन की रक्षा कर रहे हैं. और हम सबको पूरा का पूरा उनको समर्थन देना है. ये हिंदुस्तान की रियलिटी है. अब आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, जरूर पूछिए. We'll take questions. देखिए, एक बात है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये मैं किसान भाइयों के लिए कर रहा हूं. तो ब्रॉडली मैं आपके जवाब दूंगा, मगर डिस्ट्रैक्ट करने की आप कोशिश मत कीजिए. We'll go one by one. Let's go with Sanjeev from PTI. I'll come to you, ma'am. I've noted it.
currently over the issue of farmers. Both the government and the farmers sticking to their stand. So where do you think lies the solution to this issue? And do you think or convening an all-party meeting would be a... There is no deadlock. You have to understand what is going on. There is no deadlock. The government believes that they can tire out the farmers. The government, in its arrogance, believes that किसानों को थकाया जा सकता है, किसानों का बेवकूफ बनाया जा सकता है। किसानों को ना थकाया जा सकता है, ना उनका बेवकूफ बनाया जा सकता है। किसान प्रधानमंत्री से ज्यादा होशियार है। प्रधानमंत्री से ज्यादा समझ हिंदुस्तान के किसान को है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो दैट इज द रियलिटी। सोल्यूशन एक ही आएगा, ये तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ेगा और कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। We are exerting more pressure. We are already exerting pressure. This press conference is a means of exerting pressure. But more than exerting pressure, I think the thing to understand is that this is not about farmers. This is about the creation of massive monopolies in this country that are going to take away wealth from the people of India. This is the crux of it. Please tell me one industry in India today, just name it for me, which is not monopolized by the same 5-6 people. That is the real crux of the issue. The farmers are, this is the first step, but you will see after the farmers, India will not be able to produce jobs. Why is it that the Indian economy has gone from the worst, from the best performance to the worst performance? Siddharth from ANI, I've noted that. अभी मुझे, हाँ, ये अटेम्प्टेड डिस्ट्रैक्शन है, ये अभी फुल डिस्ट्रैक्शन नहीं है, अटेम्प्टेड डिस्ट्रैक्शन है, बट ठीक है। हाँ, देखिए जो उनके दिल में है वो मेरे बारे में कहते हैं। सरकार किसानों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। सरकार कह रही है किसानों को कि देखिए बात करिए हमसे, 10 बार बात हो गई, 9 बार बात हो गई, वो उसको सरकार घसीटती जा रही है। तो रियलिटी किसान जानते हैं, और राहुल गांधी कौन है, क्या करता है, हिंदुस्तान का हर किसान जानता है। किसान जानता है भट्टा परसौल में नड्डा जी नहीं खड़े थे, मैंने तो उनको नहीं देखा। लैंड एक्विजिशन समय नड्डा जी तो नहीं खड़े थे, मोदी जी तो नहीं खड़े थे, राहुल गांधी खड़ा था। तो जब किसान की जमीन का मामला था वहां पे कांग्रेस खड़ी थी। जब किसानों के कर्जा माफ करने की बात आई थी वहां कांग्रेस खड़ी थी। नड्डा जी कहां थे, मुझे तो नहीं दिखे। थैंक यू। कैन वी गो टू एबीपी आशीष। और ये मैं आपको एक और बात बता देता हूं, देखिए मेरा कैरेक्टर है, मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते, बात समझिए। हां, गोली से मार सकते हैं वो अलग बात है, मगर छू नहीं सकते। और मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं, ठीक है, और मैं करता जाऊंगा। मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा, मगर मैं अकेला खड़ा होकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा धर्म है, मैं उनसे भी ज्यादा फैनेटिक हूं, ठीक है। और यहां क्या हो रहा है, जिस चीज के लिए देश लड़ा था 70-80 साल पहले, वो फिर से हो रहा है। आज मेरी बात मत मानो, जब गुलाम बन जाओगे तो फिर मानना, मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, मैं तो गुलाम नहीं हूं ना। आशीष फ्रॉम एबीपी। सर, जिसका रेफरेंस सिद्धार्थ
दिया जेपी नड्डा साहब ने, कुछ स्पेसिफिक चीजें पॉइंट आउट की हैं। उन्होंने कहा है कि एपीएमसी एक्ट को रिपील करने की बात आपके मैनिफेस्टो में क्यों की। दूसरा उन्होंने कहा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को आप लोगों ने स्टॉल क्यों किया, एमएसपी के प्राइसेस क्यों नहीं बढ़ाए। ये उनके स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ सर, क्योंकि आज सुबह सुबह आपने भी ट्वीट किया था, जेपी नड्डा साहब ने आपसे चाइना वाले इशू पर भी सवाल पूछा है कि आप क्यों ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, जबकि ये जमीनें पंडित नेहरू के जमाने में चाइना ने कब्जा। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं, किसान का जवाब देता हूं। किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे जवाब दूंगा। और जहां तक एग्रीकल्चरल सिस्टम की रिफॉर्म की बात है, हाँ हमने रिफॉर्म की बात की है, मगर हमने एग्रीकल्चरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं की। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि किसान जाकर कोर्ट में नहीं जा सकता। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि मंडी को हम खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। हमारे किसी भी कानून में नहीं लिखा कि हम मतलब एक दो लोगों को पूरे हिंदुस्तान का अनाज स्टोर करने देंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है। Thank you, sir. Can we go to Arun from News 18? I'll come to you, ma'am. राहुल जी, 8-9 दौर की 10 दौर की बातचीत हो चुकी सरकार के बीच और किसानों के बीच। सरकार ये उम्मीद कर रही है कि कभी तो बीच का कोई रास्ता निकल जाए ताकि हमारी भी फेस सेविंग हो जाए और किसानों की बात भी रह जाए। अब संसद का सत्र आने वाला है, क्या कांग्रेस पार्टी संसद के अंदर तीनों कानून को खत्म करने से कुछ भी कम पर मान सकती है या खत्म करने के बाद नहीं, देखिए, सॉरी, खत्म करिए, डिस्ट्रैक्शन वाला, ठीक है, उसको आप बाद में बोल देना। पहले इसको मैनेज करता हूं। देखिए, ये एक प्रोसेस है। ये जो 3 कानून है, ये प्रोसेस के एक भाग है। प्रोसेस क्या थी? प्रोसेस भट्टा पर सोल, प्रोसेस लैंड एक्विजिशन, प्रोसेस की नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं बोनस नहीं दूंगा, एमएसपी में सही पैसा नहीं देना। आस्ते 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 नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी किसान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार किसान कमजोर हो गया तो फिर वो लड़ ही नहीं पाएगा। तो ये जो 3 कानून हैं, ये एक प्रोसेस है, ये यहां नहीं रुकने वाले। इनका लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के किसान को ये खत्म करना चाहते हैं। और ये जो पूरा एग्रीकल्चरल सिस्टम है, ये अपने 3-4 मित्रों को देना चाहते हैं। ये रियलिटी है। और हमारा काम हिंदुस्तान का जो किसान है उसका प्रोटेक्शन करना है। तो इस स्पेसिफिक इंस्टेंस में ये 3 कानूनों को रद्द करना ही पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की पोजीशन है, किसानों की पोजीशन है। मगर आप यह मत सोचिए कि अगर ये 3 कानून रद्द हो गए नरेंद्र मोदी वहां रुकेंगे। वो नहीं रुकने वाले। वो हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम को 3-4 लोगों के हाथ में करना ही चाहते हैं और हमें उनको रोकना है। नहीं, वो डिस्ट्रैक्शन वाला नो, अब मैं आपके पास वापस आऊंगा। पूछ लो, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। I'll come to you. संजय मिश्रा जी फ्रॉम जागरण। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे मैं टिप्पणी नहीं देना चाहता हूं, बट सुप्रीम कोर्ट की रियलिटी पूरे हिंदुस्तान को दिख रही है। Thank you, sir. I'll come to you. I'll come to you. Anand Patel from India Today. You spoke about the narrative and the agenda which the government is trying to set whenever it is in a suit. The farmers were also labeled as Naxals and terrorists and Khalistani, and certain media also played it up. Now they stand exposed to the WhatsApp chat leaks. How do you see this kind of attempt, time and again by the government whenever such incidents occur? Look, the law will take its own course, but I have an observation. This was top secret information. This was not provided to anybody else. There were 4 or 5 people who knew this information. Prime Minister of India, possibly the Defense Minister of India, the Home Minister of India, the Air Force Chief. These would be the 5 people who would know this. This is a criminal act. Giving
official secret information to a journalist is a criminal act, both on the part of the person who accepted it and on the part of the person who gave it. These people call themselves patriots, right? There's nothing patriotic about putting our Air Force at risk. There's nothing patriotic about taking political advantage so that our aircraft gets shot down, so that the Pakistanis know that our Air Force is coming, right? If Mr. Arnab Goswami knows, if it is on his WhatsApp, I assume the Pakistanis also know it. It's not a very big jump, right? So it is a criminal action, and that investigation should begin. I want to know whether it was the Prime Minister of India who told Arnab Goswami, or it was the Defense Minister, or it was the Home Minister, or NSA. I want to know which one of those people told this man. And this is a criminal action, so that, it should be looked into. Thank you. Let me go back to Uma Shankarji from NDTV. Also, the distressing thing, I haven't gone into the details of it, but the distressing thing to me was somebody saying this is going to be very good for us when our CRPF boys are killed, right? That is the anti-national act, and I don't like that language. Thank you. Sir, just 1 minute. Uma Shankar. हिंदी में बोल दूं? देखिए, अच्छा आप सवाल है, एक तो किसान से है, दूसरा जवान से है। किसान जो है वो किसी भी तरह से पॉलिटिकल एक प्लेटफॉर्म आप लोगों को नहीं दे रहे हैं, हालांकि आप किसानों की लगातार बात कर रहे हैं, उनकी लड़ाई संसद के भीतर लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पे वो आप लोगों को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मंच नहीं दे रहे। क्यों कांग्रेस इन रूट्स नहीं बना पा रही? नहीं, ये बात नहीं है। हम किसान की इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करते हैं। ये हम बात एक्सेप्ट करते हैं कि ये किसानों का आंदोलन है, और हम उनकी जो स्पेस है, उनकी जो जगह है, उसकी इज्जत करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं। ये रियलिटी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों को मदद करने का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं यहां आया हूं, मैंने कल भी बोला, तो हम मदद कर रहे हैं, हम प्रेस के थ्रू मदद कर रहे हैं, हम स्टेटमेंट्स के थ्रू मदद कर रहे हैं, मगर हम उनका आदर भी करते हैं। थैंक यू। देखिए, मैंने कोरोना के समय कहा था फरवरी में कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। आप में से लोगों ने मजाक उड़ाया, ठीक है? आप में से लोगों ने कहा कि देखो राहुल गांधी क्या बोल रहा है। शब्द था फियर मॉन्गरिंग। मैं आपको आज बता रहा हूं, और आप अपने नोटपैड में ये लिख दीजिए, चाइना हिंदुस्तान की कमजोरी को देख रहा है और समझ रहा है, और चाइना के पास एक साफ क्लियर स्ट्रेटेजिक विजन है। वो दुनिया को शेप करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के पास कोई स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है। हिंदुस्तान कभी ये करता है, कभी वो करता है, स्ट्रेटेजिकली काम नहीं कर रहा है। चाइना ने हिंदुस्तान को 2 बार टेस्ट किया है। एक बार ढोकलाम में टेस्ट किया है, और अब लद्दाख में अपने ट्रूप्स डालकर टेस्ट किया है। वो टेस्ट कर रहा है, वो ऐसे देख रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर चाइना को क्लियर मैसेज हिंदुस्तान ने नहीं दिया, अगर हिंदुस्तान ने क्लियर अपने दिमाग में स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, चाहे वो मिलिट्री स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो, तो चाइना चुप नहीं बैठेगा। चाइना इसका फायदा उठाएगा, और जब फायदा उठाएगा तब नुकसान हो जाएगा, तब आप उसको रोक नहीं पाओगे। इसीलिए मैं रिपीट करता जा रहा हूं, मैं रेड फ्लैग रेज कर रहा हूं सरकार के लिए। आपके जमीन के अंदर आ गए हैं, आपको लगता है कि इसको आप तू मैं करके परे कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आप इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू इसको मैनेज कर सकते हो। आप गलत फहमी में हो।
चाइना दूसरी चीज है। चाइना डोमिनेट करना चाहता है और वो सिस्टमैटिकली काम कर रहा है। आपके शब्दों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप मेरे बारे में कुछ भी बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका काम हिंदुस्तान की रक्षा करने का है, आप नहीं कर रहे हो, और उसका नतीजा हिंदुस्तान को देखने को मिलेगा। रियलिटी से नहीं हट सकते हैं। इसीलिए मैं वार्निंग दे रहा हूं कि देखिए, मैं ऑपोजिशन लीडर हूं, मेरा काम है, देखिए कोरोना आ रहा है, इकोनॉमिक डैमेज होगा, लोग मरेंगे, तैयारी कर लीजिए। उन्होंने कहा राहुल गांधी बकवास कर रहे हैं। आपने देख लिया, इकोनॉमी उड़ गई, रोजगार खत्म हो गया, मजदूर मर गए। क्यों? क्योंकि वो बस बातचीत करते रहते हैं। उनके माइंड में वो एक्शन नहीं करना चाहते। और दुनिया डेंजरस रास्ते से निकल रही है। ट्रांजिशन पीरियड है, बदलाव का पीरियड है, और जो हमारी नेशनल लीडरशिप है उसको सीरियसली लेना चाहिए। थैंक यू सर। कैन आई गो बैक टू रमन? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि फार्म लॉ एक इवेंट नहीं है, एक प्रोसेस है। पहले लैंड एक्विजिशन, भट्टा पर सॉल, प्रोसेस। चाइना एक इवेंट नहीं है, चाइना एक प्रोसेस है। और मैं स्टडी करता हूं, मैं सोच समझ के बोलता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत डेंजरस सिचुएशन बन रही है। शुक्रिया। मैं क्या सब साथियों से अनुरोध करूं कि जैसा राहुल जी ने कहा था कि ये किसान मजदूर को लेकर पत्रकार वार्ता है, तो हम अपना प्रिंसिपल फोकस वहां रखेंगे। रमन फ्रॉम न्यूज़ 24। ये सर कम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार जिक्र किया कि भट्टा परसौल में या भूमि अधिग्रहण कानून किसी को नहीं लगता था कि वापस होगा, लेकिन सरकार पर आपने दबाव बनाया और वापस हुआ। और हमने तमिलनाडु में भी आपका बयान देखा कि जो आपने कहा कि मैं आपको कह रहा हूं कि इस कानून को, जो कृषि कानून है, इस कानून को भी सरकार को वापस लेना होगा। लेकिन एक किसान नेता का बयान कल या परसों आया था। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष मजबूत होता तो शायद हम लोग को सड़क पर बैठना नहीं पड़ता। कई महिलाओं ने कहा कि हम अपने घरों से नहीं निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे सड़क पर टेंट में बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि ये रियलिटी है, उनको भी इस बात को स्वीकार करना पड़ रहा है कि विपक्ष मजबूत नहीं है, इसी के चलते हमको? देखिए, जो विपक्ष लड़ता है वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के साथ लड़ता है। विपक्ष को फ्री एंड फेयर मीडिया की जरूरत होती है, विपक्ष को इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है, विपक्ष को जुडिशरी की जरूरत होती है, विपक्ष को पार्लियामेंट की जरूरत होती है। तो हर इंस्टीट्यूशन को इन लोगों ने कैप्चर कर रखा है। कोर्ट्स को ये कंट्रोल करते हैं, मीडिया को ये कंट्रोल करते हैं, पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं। तो जिस प्रकार से अंग्रेज हिंदुस्तान को चलाते थे कि देखो, अगर ब्राउन चमड़ी है तो बोल नहीं सकते, वैसे ये हिंदुस्तान को चला रहे हैं। बोल नहीं सकते, बोलोगे तो मारेंगे। तो डर का माहौल है। आपने अभी बोला कि सब लोग कहते हैं कि राहुल गांधी लड़ रहा है, मगर डर का माहौल है। आप लोग जानते हो कि जो आपको रियलिटी दिख रही है आप नहीं कह पाते हो, आप मेरे पास आके कहते हो। तो ये हिंदुस्तान की रियलिटी है और इससे हम लड़ेंगे। थैंक यू सर। दोबारा फिर किसानों पर फोकस लाते हुए मौसमी फ्रॉम आज तक। राहुल, आपसे पूछना चाहते हैं, हम लोग सिंगू लगातार जा रहे हैं और वहाँ पे कई किसानों ने अपनी जान गंवाई है, उनको शहीद का दर्जा वहाँ पे दिया जा रहा है। पर अगर आप देखिए तो लगातार इस तरह के सरकार भी एफिडेविट कोर्ट में दे रही है कि खालिस्तानी एलिमेंट है,
और वहाँ पे ऐसे संगठन हैं जो देश को विभाजित करना चाहते हैं, और इस तरह का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार दे रही है। तो क्या आपको लगता है क्या अंजाम है इसका? और कई नेता सिंघू बॉर्डर पर गए, अरविंद केजरीवाल भी गए, अगर कांग्रेस से लड़ाई लड़ रही थी, क्या आपने मुनासिब नहीं समझा कि वहाँ जाना चाहिए? नहीं, वो तो मैंने आपको समझाया कि हम किसानों की जो का आंदोलन है उसको रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, तो दैट इज द रीजन। देखिए, आपका पहला सवाल क्या था? सॉरी। कई किसान शहीद हुए हैं हाँ, वहाँ पे ठंड की वजह और से, खालिस्तानी। जहर हाँ, खाया है। जी। देखिए, गवर्नमेंट का अप्रोच है कि एटीट्यूड है कि हमें सब कुछ मालूम है, और हमारे खिलाफ जो भी बोलता है वो एंटी नेशनल है, क्रिमिनल है। ये इनकी अप्रोच है। हम जो बोल रहे हैं, हमें प्रॉब्लम दिख रही है, कोरोना की हमें प्रॉब्लम दिखी, हमने बोला, गवर्नमेंट हमारा दुश्मन बना देती है। हमने चाइना की बात बोली, गवर्नमेंट हमारा दुश्मन बना देती है। बट हम वार्निंग सिग्नल दे रहे हैं। गवर्नमेंट को यह समझ नहीं आ रही है कि मान लो इन्होंने इन किसानों को दबा भी लिया, मामला वहां नहीं रुकने वाला, एनर्जी कहीं और से निकलेगी, युवाओं से निकलेगी, अनएम्प्लॉयड यंगस्टर से निकलेगी। तो हम वार्निंग दे रहे हैं कि देखिए, आपने हिंदुस्तान के किसानों पर आक्रमण किया है, यह आप मत कीजिए। आप इनकी शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं। तो ये रियलिटी, इनकी अप्रोच ही गलत है। ये सीखना नहीं चाहते हैं, ये सोचना नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ बोलना चाहते हैं। इनको सिखाया गया है, आरएसएस के लोग उनको सिखाते हैं कि देखो, ना तुम्हें सुनना है ना तुम्हें समझना है, तुम्हें बस बोलना है, और बोलने में ये टॉप ग्रेड है, बट सोचते नहीं है। और देश को चलाने के लिए बोलने से ज्यादा सोचने की जरूरत होती है। Thank you. I'll go one by one. Anup Vajpayee ji from Amar Ujala. There. We should conclude now after Sir, one more question. Anup is there. उनकी स्टाइल ही नहीं है, अब उनकी स्टाइल ही नहीं है, तरीका ही नहीं है उनकी दूसरी अप्रोच है। हाँ, तो मेरे बोलने से क्या फायदा? I'll come to you. Sunil Prabhu from NDTV. Sorry, I'm not attempting to distract, but just going on Raman's point about the leadership issue and how you take it forward. I'm not going to get into that. I know that. I respect that. Because the idea is to take it somewhere else. I'm not going there. But my point is that you have been fighting the Congress party and the opposition, be it in parliament and elsewhere. You went to the president and everywhere. All options seem to be out, and now you yourself pointed out the media is not there, the judiciary is compromised, there is a parliament which is compromised. Where will justice come for the farmers? That is the critical issue, and especially in the fact that there is a leadership crisis within the opposition. I believe in the spirit of this country. I do not believe that you can impose slavery on this country. I do not believe this country will accept 5 or 6 people owning it. I don't believe it. So where will the resistance come from? It will come from the people of India. Our job is to highlight what is going on to the people of India. We are struggling. Why? Because the instrument of transmission is not controlled by us. Right? So the press is not controlled by us. We don't have the thousands of crores of rupees that Narendra Modi ji has. We cannot put thousands of crores of rupees in social media. We cannot. But this is an advantage for us, because it forces us to be pure. It forces us to be honest. It forces us to tell the truth. This is good. I don't have a problem with it. I think broadly I will tell you, if you step back a little bit, what has happened is that the vision that India had for itself from 90s has collapsed. What used to work in the 1990s does not work anymore. So India requires a new vision.
It requires a new imagination. And this is all the turbulence that is taking place because India does not have a vision. And Congress Party's job and its skill is in providing that vision. So you will see that we will provide India with that vision. There are many millions of people in India who do not accept this nonsense that is going on in the country. And they understand that there is a massive failure taking place. We used to be preeminent economy in the world. We are laughing stock. We are complete laughing stock. We cannot give our youngsters jobs. Our farmers are sitting outside in the cold. I don't know why Narendra Modi ji thinks this is something to be proud of. This is something to be ashamed of. The whole world is looking and saying, what is going on? Why are lakhs of farmers sitting outside Delhi? So he is destroying India's image, which the Congress has built. Slowly, Mahatma Gandhi first. Slowly we've built it. वो उसको उड़ा रहा है. मतलब फाड़ फूड़ के फेंक रहे हैं. So that is the reality. We need to conclude. I'll go to Vijay Lakshmi first. जेपी नड्डा ये भी बोले हैं बीजेपी अध्यक्ष कि जब आप विपक्ष में होते हैं तभी आप फार्मर्स के साथ सिंपैथाइज करते हैं वरना आपकी सिंपैथीज ये सवाल भट्टा परसोल में हम सरकार में थे. प्लीज टेल हिम टू रीड द न्यूज़पेपर्स. और कर्जा माफ हमने 72,000 करोड़ रुपए किया और लैंड एक्विजिशन बिल में हमने पार्लियामेंट में ऑपोजिशन में पास नहीं किया था. हम सरकार में थे. बट एनीवे जेपी नड्डा इज नॉट एनीबडी आई एम आंसरिंग टू. बहुत बहुत शुक्रिया सामिया. Well, I remember the Prime Minister saying, "Is bar Trump Sarkar." I remember in Texas it was that, you know, he was holding his hand up and saying, "Is bar Trump Sarkar." Sorry, I'm not Trump. He's not Trump. I'm Joe Biden. Look, the point is whether he is Trump or Joe Biden. The point is whether he is Trump or Joe Biden, right? As a Prime Minister of a country, you don't do something like that. Because you're disrespecting the people of the United States by doing this. Because this is their choice, not your choice. So it is a lack of understanding of fundamentals. And you know, now of course, Trump lost. So. Thank you, Supriya. हिंदी में बोलना था आपको. व्हाट्सएप की जो लीक्स हुए हैं नेशनल शिपिंग अच्छा, हाँ. से जुड़े हैं देश के चौथे स्तंभ पे सवाल कर रहे हैं. देखिए, not be booked as for treason and as a traitor because he's leaking classified information. वो किसको बुक करना है? वो जर्नलिस्ट को बुक करना है या उसको उनको बुक करना है जिन्होंने इंफॉर्मेशन दिया, या दोनों को बुक करना है? दोनों को बुक करना पड़ेगा क्योंकि इंफॉर्मेशन दिया भी किसी ने है और लिया भी किसी ने है. देखिए, एक जर्नलिस्ट को डिफेंस का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बालाकोट से पहले इंफॉर्मेशन दी जा रही है. उसी जर्नलिस्ट ने पहले कहा पुलवामा के बाद कि यह हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है. रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंडसेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. जो इनकी माइंडसेट है वो उनकी माइंडसेट है. ये देखो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है कि हमारे 40 लोग मर गए, अब हम चुनाव जीत जाएंगे. आपने इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन 4-5 लोगों के पास थी. ऐसे मिशन में पायलट्स के पास नहीं होती है. ऐसे मिशन में पायलट्स को लास्ट मिनट में मिलती है. एयर चीफ के पास थी, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए. इन 5 लोगों में से किसी ने इस व्यक्ति को यह इंफॉर्मेशन दी. यह क्रिमिनल एक्शन है. पता लगाना पड़ेगा किसने दी और उन दोनों को जेल में जाना पड़ेगा. और यह प्रोसेस शुरू हो जानी चाहिए. मगर यह प्रोसेस शुरू नहीं होगी. मैं बता दूंगा आपको क्यों. क्योंकि प्रधानमंत्री ने इंफॉर्मेशन दिया होगा. तो होगी नहीं, शायद बाद में हो. क्या आधार आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने दिया है? नहीं, मैं बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं. 5 लोगों के पास है.
आपके पास इंफॉर्मेशन थी, आप तो नहीं दे सकती थी। प्राइम मिनिस्टर न्यू, एयर चीफ न्यू, NSA न्यू, होम मिनिस्टर न्यू, डिफेंस मिनिस्टर न्यू, 5 पीपल न्यू। विच वन ऑफ इनमें 5 में से किसने दिया? तो दैट इज क्लियर कट, सीधी सीधी बात है। 1 सेकेंड सर, लास्ट क्वेश्चन रंजीता जी। राहुल, इस पूरे किसान आंदोलन के दौरान कई चीजें देखने को मिली, कई चीजें सुनने को मिली। एक जो अहम चीज रही वो ये कि असली और नकली किसान। लगातार सरकार की तरफ से भी ये कहा गया कि नकली किसान है जो बाहर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या डेफिनेशन क्या है असली और नकली किसान के? यू हैव टू आस्क द प्रोफेसर, व्हाई यू आस्किंग मी? आप प्रोफेसर से पूछिए, नाडा जी से पूछिए। We can conclude. Thank you Thank very you much. so much. कब होगा? चलो चलो चलो